friends, welcome back to my channel Study with Sony. Today I'm going to solve a transportation problem question by applying least cost method, LCM. So friends, let's solve the question. Friends, as you can see that here we have been provided a question with a table in which we can observe that product P and Q is given and factory A and B with the demand and supply is also provided. So for solving this question, we need to identify first whether this table is balanced or unbalanced. So to know whether this table is balanced or unbalanced, we have to find out the total demand and the total supply. So total supply is 20 plus 50, which is 70, and the demand, which is given here, is 30 and 60. So total demand is 30 plus 60, that is 90. So as we can see that the total supply, which is 70, and total demand, which is 90, is not equal. We need to add 20 in supply to make demand and supply equal by 90. So what we need to do is we have to create a dummy row where we can add a supply of 20. So as we can identify that table is unbalanced, so to make it balanced, we need to create a dummy row C and by placing 0 in both the cell and in supply column, we will put 20 so that demand, total demand and total supply become equal by 90, right? अब क्या करना है, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि हमें एक डमी रो सी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है टेबल में वो अनबैलेंस की दिखा रही है. डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल करने के लिए हमें सप्लाई में 20 का एडिशन करना पड़ेगा.
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, और ये हमारी सोल्यूशन टेबल है जिसमें कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि अभी मुझे नंबर्स प्लेस करने हैं बस। तो यहाँ पे जैसे 10, 20, 15, 30, 20, 50 ये नंबर ऑलरेडी दे रखे हुए हैं। डिमांड भी दे रखी हुई है हमें 30 एंड 60 की। हमें एक डमी रो ऐड करनी हुई यहाँ पे, और उस रो का नाम क्या होगा? सी। तो हमने यहाँ पे सी जो है यहाँ पे डमी रो ऐड कर दी है, और इसमें हम जो है सेल पे वैल्यू क्या देंगे? 0 की। यहाँ पे सप्लाई में हम 20 प्लेस करेंगे सो दैट वी कैन मेक टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इक्वल। 20 plus 50 plus 20 becomes 90, and 30 plus 60 is 90. So now the table is balanced, and from here we will make next step to solve this question by LCM method, which is least cost method. So in the least cost method, first we have to identify the minimum number in the cell given here. We can see the number placing in the cell are 10, 15, 20, 30, 0 and again 0. So as you can see that there are 2 zeros placed over here. So which one zero we have to select is a problem. So to tackle out the problem, what we will do is we will identify where is the maximum demand or supply is placed. That where means maximum number of demand and supply is placed, that identical number will be considered for the placement. So as we can see that here this 0 having supply of 20 and demand of 60, and in this 0 we have the demand of 30 and 20. So we can see that 60 is the maximum number. So this 0 is selected for the placement. So what will be placing? So we will place 20 here from supply. सप्लाई से जैसे ही हमने 20 प्लेस किया हुआ है तो हमारी सप्लाई यहाँ पे फिनिश हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो है 40। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारा सप्लाई या डिमांड में से जो भी फिनिश हो जाता है कंप्लीटली, डिमांड या सप्लाई कोई भी फिनिश होती है, वहाँ से वो कॉलम या रो हम जो है उसको डिप्लीट कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो है सी वाली जो रो है उसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि हमने इस रो को अब कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेल में ये 4 नंबर है, इन 4 नंबरों में से जो है हमारा 10 जो है वो मिनिमम नंबर है। तो ये जो 10 है इसके सामने जो डिमांड 30 की है, सप्लाई 20 की है, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे 20 की सप्लाई प्लेस करेंगे। ये सप्लाई यहाँ से फिनिश हो चुकी है, यहाँ से डिमांड
स्टिल 10 की लेफ़्ट हो चुकी है, तो हमने इस रो को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। अब हमारे पास 20 और 30 सेल में बचे हुए हैं, जो कि 20 इसमें से मिनिमम नंबर है। मिनिमम नंबर के सामने सप्लाई 50 की है, 10 की डिमांड है। यहाँ हम इसको 10 की डिमांड सेटिस्फाई पूरी कम्प्लीटली कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, क्योंकि हमने 10 का यहाँ पे डिमांड सेटिस्फाई किया है बाय प्रोवाइडिंग 10 ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे आपका जो है 40 लेफ्ट है। अब हमारे पास एक जो सिंगल नंबर सेल में बचा हुआ है वो है 30। 30 के सामने जो है डिमांड 40 की है एंड सप्लाई जो है वो 40 की है। तो हमने यहाँ पे 40 की सप्लाई और डिमांड पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो हमने यहाँ से जो है कॉलम को एलिमिनेट किया और यहाँ से हमने रो को एलिमिनेट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे द इनिशियल feasible solution to TP problem, means transportation problem, by LCM method is, क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 जो कि ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उसको आउटर नंबर जो है सेल का जो, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 इंटू 20, नेक्स्ट 30 प्लस यहाँ पे करेंगे 30 इंटू 40 प्लस 0 इंटू 20, 200 यहाँ पे प्लस 200 प्लस 1200 प्लस 0, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 1600। जो 1600 है वही हमारा जो है बस यहाँ पे इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन है 1600, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये जो 1600 है ये हमारा इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आया हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल आती है क्वेश्चन को समझने में, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैंने और भी क्वेश्चन जो है एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रखे हैं, वो भी मैंने अपलोड कर रखे हुए हैं वीडियोस में। सो आप उन क्वेश्चंस को भी जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। आगे मैं जो है वैम मेथड भी बताऊंगी, जिसमें कि जो है हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वैम मेथड से सॉल्व करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। Thank you so much for watching my video.